So now, next up we have Mr. Vinod Goyal from Agricare Corporation. He is also the treasurer for GCS MAI and probably dealing in most number of products than anybody else in the country. Suppliers to various golf clubs, has a huge, lots of years of experience dealing with different kinds of problems and issues on golf courses. Over to you, Mr. Vinod Goyal, please. Thank you. Thank you very much, Mr. Vijay. Thank you. Am I audible? Yes, sir, you are. And my screen? Yeah, we can see. Very clear. Okay. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Vijay, and thank you everybody to give me the time to present my presentation. And all presentation will be in English, but I will speak in Hindi for the benefit of the people which I am addressing in India. So let me allow to speak in Hindi, and in the meantime, you can read the presentation, which is all text will be in English. जैसा विजित साहब ने बोला कि मेरी कंपनी आई एम फ्रॉम नोएडा, बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस फ्रॉम नोएडा, एंड वी आर 36-year-old company, and in the same trade since last 36 years. We are importing so many products from all over the world, from Canada, USA, Chile, Brazil, Spain, Italy, Germany, Poland, Israel, Jordan, Saudi Arabia, UAE, and China, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Indonesia, South Africa, so many countries all over the world. And we are having a lot of products which are specialty fertilizer and specialty product for the benefit of golf courses. We are actually having all the three aspects. We are manufacturing also, we are marketing, we have an import and export. We cater to orchards, drip, field crops, tissue culture, polyhouse, hydroponics, turf, stadium, golf, and plantation. This is my profile, but I will skip because already we are very late. This is the seminar we held in नासिक में हमने सेमिनार किया था, उसका एक फोटोग्राफ है. हमारी कंपनी जो है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टर्फ और पब्लिक ग्रीन के लिए बहुत प्रोडक्ट देती है. एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, वी आर प्रोवाइडिंग कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मिनरल फर्टिलाइजर, माइक्रोबियल फर्टिलाइजर. Then we are providing liquid fertilizer, wetting agents, biostimulants, fungicides, all type of plant nutrition and plant protections. It means pesticides. We are also providing soil conditioners and growing media, turf seeds, turf care machines and garden tools. We are providing turf culverts, imported automated irrigation drainage system. We are providing lake management products, soil and water testing products, and so many allied items. We have so many corporate clients in landscape, sports field, beachside, indoor-outdoor horticulture, orchards, plantations, greenhouse, open field farming, tissue culture, drip irrigation, soil erosion, so many. We actually provide single-stop solution with wide range of ready stock products.
We have been toll marketing also, toll manufacturing also. So we have so many corporate clients, so many golf courses, so many sports stadium. You can see, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं. Company is a member of GCCMI. We are member of GIA. Then we are a member of Noida Floriculture Society, Rose Society of India. Company is registered with ISO, and myself is trained by R&A, IGU, Dr. Micah Woods, and I am BIS trained chemist. This is a photograph. This association, GCCMI, has been providing a tough management course at Navsari University, जिसमें I go as a faculty, and this is a photograph with the students and vice chancellor. Now we come to the subject. Plant nutrition is the subject we have to deal today. और इस प्लांट न्यूट्रिशन में ये सब लोग जानते हैं कि टर्फ डज नॉट वर्क लाइव फ्रॉम नाइट्रोजन अलोन. खाली यूरिया डाल के टर्फ के ऊपर हम लोग जो है टर्फ को नहीं चला सकते. टोटल में सुपर 17, वी कॉल सुपर 17, कुल मिला के 17 कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमें टर्फ को देने होते हैं या किसी भी प्लांट को देने होते हैं. इस फोटोग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सब मेंशन्ड है. कुछ नेचर से आते हैं, बाकी हमें ऊपर से देने होते हैं. लेकिन टर्फ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम. उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट चाहिए मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर. उसके बाद ट्रेस एलिमेंट चाहिए. नाइट्रोजन का क्या काम है, फॉस्फेट का क्या काम है, पोटेशियम का क्या काम है, ये सब इसमें मेंशन्ड है. हम लोग सब समझते हैं कि इन सब का रोल है जिससे टर्फ को ग्रो करने में, टर्फ को हेल्दी टर्फ बनाने में मदद मिलती है. यदि किसी भी न्यूट्रिशन की कमी टर्फ में होगी तो उसका एक डेफिशिएंसी सिम्टम भी टर्फ की लीफ पे आता है, जिसको हम इससे पहचान सकते हैं और गेस किया जा सकता है कि उसमें क्या कमी है और उसके तरीके से उसका न्यूट्रिशन की को डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है बाय एडिशन ऑफ एनी प्रोडक्ट. किसी भी गोल्फ कोर्स का एनुअल टर्फ फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है. वी हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट NPK एंड MG बेसिकली. और उसमें क्या, जैसा डिफरेंट टाइप ऑफ टर्फ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है. जैसे इसमें आपको देख सकते हैं गोल्फ ग्रीन है, टी एंड सराउंडिंग ऑर्नामेंटल टर्फ है, उसमें नाइट्रोजन जो ज्यादा है. फिर न्यू फेयरवे उसमें फॉस्फोरस की जरूरत है या उसकी कैलकुलेशन है, MG की जरूरत है. उसको किलो में, केजी पर हेक्टेयर और ग्राम पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन दिया हुआ है. इस तरीके से कैलकुलेट करके फिर उसके बाद फर्टिलाइजर का प्रोग्राम बनाया जाता है. कोई भी प्रोग्राम जब फर्टिलाइजर का बनाते हैं तो सीजनल टर्फ फर्टिलाइजर प्रोग्राम बनाया जाता है कि विंटर में क्या चाहिए और स्प्रिंग में क्या चाहिए या फॉल में क्या चाहिए. तो उसका भी कैलकुलेशन है कि जो टर्फ है हाई डिमांड में है सितंबर अक्टूबर में, जनवरी दिसंबर में, फरवरी मार्च में, मई जून में, उस हिसाब से फर्टिलाइजर प्रोग्राम बनाया जाता है. ये कहा जाता है कि ग्रासेस हैव द हाईएस्ट न्यूट्रिएंट डिमांड इन स्प्रिंग एंड समर. लो वियर टर्फ एंड एरिया विद लो रिक्वायरमेंट शुड रिसीव देयर मेन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन दिस पीरियड. तो हमें स्प्रिंग में और समर में मैक्सिमम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना होता है. इसी तरीके से हम समर की बात करते हैं जून से अगस्त तक, तो उसमें भी हमें टर्फ का प्रोग्राम बनाना होता है और स्पोर्ट्स टर्फ की डिफरेंट प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड आती है. अभी मैंने बोला कि सुपर 17 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हैं जिसका की बैलेंस रेशियो मेंटेन करके किसी भी टर्फ में चलना होता है और इसको लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है. लॉ ऑफ मिनिमम का यह है कि जो भी कंपोनेंट कम हो गया वही आपके टर्फ के अंदर उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. तो आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन और मोलिब्डेनम, इन सबका एक बैलेंस रेशियो मेंटेन करना होता है किसी भी ग्रीन के ऊपर. फर्टिलाइजर 2 तरीकों से होते हैं, 3 तरीकों से होते हैं. लिक्विड में भी होते हैं, क्रिस्टल में भी होते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में भी होते हैं. लिक्विड्स को डाइल्यूट करके पानी में स्प्रे किया जाता है. क्रिस्टल्स जो होते हैं 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको भी आप डाइल्यूट करके स्प्रे करते हो. जो ग्रेनुलर होते हैं उनको स्प्रेड किया जाता है फर्टिलाइजर स्प्रेडर के द्वारा, और कुछ क्रिस्टल फर्टिलाइजर को हम लोग फर्टिलाइजर के द्वारा स्प्रेड भी करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं.
इसके बाद फिर से हम क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक क्विक रिलीज होते हैं, एक स्लो रिलीज होते हैं। क्विक रिलीज फर्टिलाइजर वो होते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट या यूरिया, ये क्विक रिलीज फर्टिलाइजर कहलाए जाते हैं, जिनमें कि 100% वाटर सोल्यूबल है। इनको पानी में डालने के बाद, स्प्रे करने के बाद, या आप वैसे भी ब्रॉडकास्ट करते हो तो जो ही सॉइल में इनको दिया जाता है वो ये तुरंत प्रोडक्ट को रूट जोन को मिल जाते हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर वो होते हैं जो कि अपने को धीमे 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 मिलते हैं। क्विक रिलीज फर्टिलाइजर में जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर इंडिया में है वो यूरिया है, और यूरिया को डालने से टू मच नाइट्रोजन हो जाती है, और टू मच नाइट्रोजन जो है वो टर्फ के लिए, सभी डिजीज जितने भी इश्यूज हैं टर्फ के ऊपर, उन सब के लिए केवल दो ही चीज अफेक्ट करती हैं, एक तो टू मच नाइट्रोजन और एक टू मच वाटर। वाटर को आज दिन में कई बार डिस्कस किया गया है। नाइट्रोजन जब भी आप ज्यादा डालोगे उसमें ज्यादा थैच बिल्टअप होगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा, उसका एविएशन कम होगा, रिस्क ऑफ डिजीज ज्यादा बढ़ेगा, रूट ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, बर्निंग का रिस्क बढ़ जाएगा, उसमें बर्निंग, लीफ बर्निंग भी होगी, रूट बर्निंग भी होगी, वियर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और प्लांट की मैच्योरिटी जल्दी आएगी। तो इसलिए हमेशा क्विक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन को कंट्रोल करके चलना चाहिए, और यही फंडा है नाइट्रोजन को कंट्रोल करने का, जो कि एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर पे हम जाएंगे। तो क्विक रिलीज फर्टिलाइजर तभी भी डालना हो तो उसमें नाइट्रोजन का, पोटाश का और फास्फोरस का बड़ा सोर्स को डिसाइड करना चाहिए। पोटाश हमेशा सल्फेट फॉर्म में होनी चाहिए, फास्फोरस एक अच्छी सोर्स का होना चाहिए, और नाइट्रोजन जो है 3 तरह की होती है, एमाइड, नाइट्रेट और अमोनियम, तीनों तरह की रेशियो मेंटेन करनी चाहिए। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जो है उसमें नाइट्रोजन को कंट्रोल स्लो रिलीज कर दिया जाता है, ताकि वो नाइट्रोजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल रहती है। क्योंकि आप जब क्विक रिलीज में डालते हो तो नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, और बाद में जब उसकी जरूरत होती है तो उस वक्त अवेलेबल नहीं होती। अब स्लो रिलीज करने के बाद बेनिफिट ये मिलता है कि आपको फर्टिलाइजर ग्रीन पे बार बार डालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप फर्टिलाइजर को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। थर्ड ये है कि आपका फर्टिलाइजर रेन से या किसी वजह से लॉस में नहीं जाता, और लॉन्गर पीरियड जो उसका डिजाइंड है उस हिसाब से आपको मिल जाता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी मिलेगी। नंबर 2, रिलायबल स्लो रिलीज का रिएक्शन होगा, स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी प्रॉपर आएगी, आप स्कैटर कर सकते हो ओवर स्पेस जितना भी आपके ग्रीन के ऊपर या फेयरवे के ऊपर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में एक एक ग्रेन्यूल में सभी न्यूट्रिशन रहते हैं जो फार्मूला उस पर लिखा हुआ है, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सभी को इक्वल मिलेगा। फॉस्फेट का और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। ट्रेस एलिमेंट एनपीके के साथ में मिलते हैं तो कंप्रिहेंसिव रेंज मिलती है, स्टडी ग्रोथ होती है, लो टेम्परेचर के ऊपर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, रूट को सपोर्ट मिलता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज स्टिमुलेट होती हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, इसके बावजूद भी सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं उनको ये सपोर्ट करता है, आगे स्लाइड में देखने को मिलेगा, और वो स्टिमुलेट होती है। लीचिंग जो है वो प्योर सैंड में भी लीचिंग नहीं होती फर्टिलाइजर की, लो साल्ट इंडेक्स होती है, लो साल्ट इंडेक्स पे आगे स्लाइड मिलेगी, और स्कॉचिंग बिल्कुल नहीं होती, तो डिजीज और स्ट्रेस टॉलरेंस के ऊपर सपोर्ट मिलती है। अंत में ये भी है कि हमें ये भी सोचना है कि फर्टिलाइजर ब्लेंड यूज करना पड़ेगा, हमें क्विक रिलीज फर्टिलाइजर भी चाहिए और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी चाहिए। हम समर्स में 25% क्विक रिलीज फर्टिलाइजर यूज करेंगे और 75% स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ताकि कुछ इंस्टेंट ग्रोथ भी मिले और उसके बाद हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ भी मिले। जब नई टर्फ हम कभी भी ले करेंगे तो 50% विल बी द क्विक रिलीज एंड 50% विल बी द स्लो रिलीज ऑलमोस्ट। नंबर 2, हमें इसी तरीके से ग्रेनुलर और पैलेट फॉर्म में भी यूज करना होगा, और हमें फोलियर एप्लीकेशन भी करना होगा। तो हमें ये फर्टिलाइजर कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन यदि टर्फ को हम समझते हैं और गुड ग्रीन कीपर कैन डू द थिंग्स, और करने से फिर वो स्टार बन जाता है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में क्या ब्रांड अवेलेबल है, जो कि कॉम्पो एक्सपर्ट के थ्रू हम आपको अवेलेबल कराते हैं। फ्लोरानिड एक कॉम्पो का स्लो रिलीज पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसमें कि नाइट्रोजन को आइसोडुआ करके स्लो रिलीज कर दिया जाता है। इसमें दो ब्रांड अवेलेबल है, फ्लोरानिड ट्विन ईगल मास्टर और फ्लोरानिड ट्विन परमानेंट। इन दोनों का क्या यूज है वो आपको टाइम से आगे आएगा। इसमें ग्रेनुलोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें देखा होगा नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फाइन ग्रेनुलर प्रोडक्ट है वो फ्लोरानिड ट्विन ईगल मास्टर है, जिसकी ग्रेनुलर साइज है 0.5 to 1.4 mm और परमानेंट का ग्रेनुलर साइज है 0.7 to 2.8 mm। अब ये जो फाइन ग्रेनुलर साइज है, इसका बेनिफिट है जब आप ग्रीन पे डालते हो और आप ग्रीन को कट करते हो तो ये कैरी अवे नहीं होता, ये आपके रूट जोन में जाके नीचे चला जाता है। और जब ग्रीन कट करते हो थर्ड डे या फोर्थ डे, जो भी आपका सिस्टम है, उसमें फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होता। फेयरवे के अंदर चूंकि आप ग्रीन ग्रास को थोड़ा सा हाई कट करते हो, लो कट नहीं करते, तो वहां पे ग्रेनुलोमेट्री के हिसाब से परमानेंट यूज करना बेटर है, क्योंकि उसमें आपको प्राइस का बेनिफिट मिल जाता है। ये डिफरेंस है, आप देख सकते हो कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज करने से आपका रूट जोन कितना बड़ा हो जाता है। और गोल्फ कोर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको तुरंत पता लगता है डेली आपको कब काटना होता है और आपकी ग्रास की क्या हेल्थ है वो आपको मालूम पड़ जाता है। अभी हमने जिक्र किया कि आइसोडुआ क्या है, ये यूरिया और आइसोब्यूटाइल का मिला के एक कॉम्बिनेशन है जो इनका पेटेंटेड प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। आइसोडुआ कैसे काम करता है, ये मिनरलाइजेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस से काम करता है। सॉइल का क्या टाइप है, आपकी क्ले है, सैंड है, कुछ भी टाइप की सॉइल हो, नॉर्थ की हो, साउथ की हो, ईस्ट वेस्ट कुछ हो, उससे ये इंडिपेंडेंट है। इसकी वर्किंग उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। ये सैंडी सॉइल में बहुत बढ़िया काम करता है, जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में, स्टेडियम में, ग्रीन्स पे हम लोग सैंडी सॉइल रखते हैं आजकल। 3 से 4 महीने का रिलीज पीरियड है आइसोडुआ का, तो एक बार डालने के बाद आप 3 से 4 महीने तक इसको आपको फर्टिलाइजेशन मिलती है, आपको रिपीट फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। ये काम कब करता है, ये करता है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये रिलीज नहीं होता और सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इसको चाहिए। इसका मतलब ये ड्राउट कंडीशन में या लो टेम्परेचर में रिलीज नहीं होता, इसलिए वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उस टेम्परेचर पे बिना ड्राउट कंडीशन में वैसे भी रूट जोन काम नहीं करता, डोमेंसी में आ जाता, तो हमारा फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होता। अभी हमने कहा कि लो साल्ट इंडेक्स की हमने बात की, यहाँ पे कुछ फेमस जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हैं उनका साल्ट इंडेक्स लिखा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आइसोडुआ का साल्ट इंडेक्स 5 है और पोटेशियम नाइट्रेट का 74 है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन मिलती है, कैल्शियम नाइट्रेट में भी नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है, और अमोनियम नाइट्रेट में, जिसमें अमोनियम फॉर्म और नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है, उसका साल्ट इंडेक्स 105 है। यूरिया का साल्ट इंडेक्स भी 75 है। साल्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि जितना ज्यादा साल्ट इंडेक्स होगा वो उतना डैमेज अपनी ग्रास को और सॉइल को करेगा वो फर्टिलाइजर। जितना लो साल्ट इंडेक्स होगा, इसका मतलब वो साल्ट डिपोजिशन अपने टर्फ में और सॉइल में नहीं डालता। अभी मैंने बोला था कि सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्टिविटी में आइसोडुआ नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करती है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइजेशन हम करते हैं उसमें हम कहते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, वो इस टाइप को जो ये प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, ये उसको भी एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है।
इसके बाद एक कंपनी एक प्रोडक्ट देती है इजी क्लीन मिनी 21। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर नहीं है, लेकिन ये स्पेशलिटी मिनरल टफ फर्टिलाइजर है। फेवेज के लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है, और ड्यूरिंग न्यू टर्फ जब डाली जाती है तो उस वक्त भी जो हम क्विक फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, ये ग्रेनुलर फर्टिलाइजर है, सॉइल एप्लीकेशन में काम आता है, इमीडिएटली अवेलेबल रहता है। कॉम्बिनेशन 21 5 10 प्लस 3 है। 3 का मतलब है कि मैग्नीशियम 3 है प्लस टीई मीन्स ट्रेस एलिमेंट है। ये कैसे काम करता है कि ग्रेनुल साइज होने की वजह से कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जो होते हैं आप देख रहे हैं स्क्वायर में बहुत कम अवेलेबल है, और इजी क्लीन मिनी 21 ये 20 ग्राम पर स्क्वायर मीटर डाला जाता है, जिसमें 2000 ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। 1 ग्राम में 100 ग्रेन्यूल्स हैं। और नॉर्मल कन्वेंशनल जो एनपीके फर्टिलाइजर आप लोग खरीदते हैं गोल्फ कोर्सेज में, अभी भी प्रैक्टिस है 12 32 16 या कुछ भी खरीदने की, उसका 8 टाइम्स स्मॉलर ग्रेन्यूल्स है। एनपीके फाइन ग्रेड फर्टिलाइजर 1 से 2.5 mm इसका वो है, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन 1 ग्रेन्यूल है, और इसमें ये कॉम्बिनेशन इंडिया में अवेलेबल है। एडवांटेज यही है कि बेटर स्वाट पेनिट्रेशन होता है, स्कॉचिंग बिल्कुल नहीं होती, ऑप्टिमल स्प्रेडिंग होती है, और हर ग्रेन्यूल में मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट एक साथ मिलते हैं, तो उसकी वजह से अपने को कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छी आती है, और मोइंग के समय फर्टिलाइजर कलेक्शन नहीं होता। ये इसकी वर्किंग है। इस तरीके से जब डालने के बाद ये सोल्यूबल हो जाता है सॉइल में, और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो P2O5 जो फॉस्फोरस इसमें अवेलेबल है वो हाईली वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को ग्रास में मिलते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा फोलियर फर्टिलाइजर की। ये स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है। इसमें ये प्रोडक्ट वाइटेनिका पीथी मोस्ट पॉपुलर है। बहुत गोल्फ कोर्सेज इंडिया में है, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स है, या हॉर्टिकल्चर है जो ये प्रोडक्ट मेरे से लेती है। और इसके लिए ब्रीफ में मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि ये प्रोडक्ट में 3 फंक्शन ये प्रोडक्ट करता है। सबसे पहले तो ये एनपीके देता है, फिर ट्रेस एलिमेंट देता है, और नंबर 3 ये इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, और थर्ड है कि इसमें जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फाइड फॉर्म में होती है 15%, और ये एज ए फंजीसाइड काम करती है। इसको फोलियर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ये इसका रिजल्ट है। एक्लोनिया मैक्सिमा एक इसमें एक्सट्रैक्ट है जिसके ऊपर बेस किया गया, फोर्टिफाई किया गया है, जिसमें नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है। ये एक्लोनिया मैक्सिमा जो है वो कैल्प है जो साउथ अफ्रीका से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कंपनी का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, और ये नेचुरल फॉर्म होने की वजह से ये रूट जोन में बहुत हेल्प करता है। ये बीच में आप देखो इसकी ट्रायल है, ये जो पोर्शन है ये इसमें वाइटेनिक का स्प्रे किया गया। आप साइड की तरफ से इसको डिफरेंस महसूस कर सकते हो। कब यूज करना चाहिए? बिफोर एनी स्ट्रेस पीरियड, कोल्ड हॉट टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी हो उससे पहले इसको यूज करें। उस 5 से 7 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और ये रिजल्ट 3 से 4 वीक तक रहता है। 3 से 4 वीक के बाद आप फिर इसको वो स्प्रे कर सकते हो, और 3 to 6 एप्लीकेशन पर ईयर इसको देना पड़ता है। मैंने अभी एक बात बोली थी कि इसका फंजीसाइड इफेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी फंजीसाइड होते हैं मोस्टली फंजीसाइड्स में न्यूट्रिशन ही रहता है। एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है फंजीसाइड मैंकोजेब, वो हर गोल्फ सुपरनेट यूज करता है एज ए फंजीसाइड। यदि आप ध्यान से मैंकोजेब को बोलेंगे तो मैंकोजेब मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, चारों के चारों न्यूट्रिशंस हैं। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस है वो यदि फॉस्फाइड फॉर्म में होता है, इट एक्ट्स एज ए फंजीसाइड, और एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो इंडिया में यूज करते हैं एज ए फंजीसाइड हम लोग ग्रीन के ऊपर, वो होता है एलिएट। एलिएट को ध्यान से देखा जाएगा, वो तो उसका जो टेक्निकल नेम है वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो एलिएट का जो फंजीसाइड फंक्शन है वो फॉस्फाइड के कारण आता है, और ये मैंने अभी आपको बोला कि वाइटेनिका पीथी में 15% फॉस्फाइड होता है, इसीलिए आपको फंजीसाइड का फंक्शन उसमें मिलता है। ये आप जो भी गोल्फ सुपरनेंडेंट है वाइटेनिका यूज करते हैं उनको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इन 3 बातों की वजह से।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है बासफोलिया फेराटॉप। आयरन की डेफिशिएंसी जब होती है उसको पूरा करने के लिए आयरन ईडीटीए फॉर्म में है, 8% लिक्विड फॉर्म में है, जिसके साथ 15% नाइट्रोजन है, 4% सल्फर है और जिंक कॉपर मैग्नीज का कॉम्बिनेशन है। इट्स ए वेरी स्पेशल प्रोडक्ट और ये न्यूट्रिशन के साथ साथ प्लांट डिसीज को मैनेज करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको आपको देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ एग्रोनॉमिस्ट जो ऑलरेडी काम करते हैं दे नो इट वेरी वेल। सॉइल पीएच के हिसाब से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, मैं आयरन के संदर्भ में आपको समझाना चाहूंगा। आयरन में क्या होता है कि जब एसिडिक सॉइल होती है तो आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, न्यूट्रल सॉइल पे कम होती चली जाती है, और यदि एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी तो आयरन की जो अवेलेबिलिटी है पुअर होती चली जाती है। जैसे आपको उल्टा देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है एल्कलाइन सॉइल में ज्यादा अवेलेबल रहता है और एसिडिक सॉइल में कम अवेलेबल रहता है। तो ये हर प्रोडक्ट की एल्कलिन सॉइल पीएच के हिसाब से अवेलेबिलिटी बताई गई। आयरन के मामले में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आयरन में नॉर्मली जो आयरन यूज किया जाता है वो फेरस सल्फेट यूज करते हैं। फेरस सल्फेट यदि अपनी जो सॉइल जो इंडिया में मोस्टली हो गई एल्कलाइन हो गई है तो उसमें आयरन अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए उसको चिलेटेड आयरन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यदि चिलेटेड आयरन डाला जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी बेटर हो जाती है और वो आपको काफी पीएच तक कंट्रोल कर लेता है। ये लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इसकी एप्लीकेशन करना बहुत आसान है। डाइल्यूशन करके फेराटॉप एसएल को यूज किया जाता है। जब कॉम्बिनेशन में यूज करना हो तो आप वाइटानिका P3 को यूज कर सकते हैं विद फेराटॉप एसएल विद ए वेटिंग एजेंट बाय द नेम ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो सॉइल सर्फेक्टेंट है और इसका भी एप्लीकेशन आजकल इंडिया में गोल्फ कोर्सेज कई यूज करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें टूर्नामेंट और गेम की तरह कैसे यूज करना है और फॉल में कैसे यूज करना है उसका डोज हमने दिया हुआ है। एक नेक्स्ट वेरिएंट इसमें आता है वाइटानिका एसआई। एसआई का मतलब आप समझ सकते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की जरूरत अपने टर्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलिकॉन सेल वॉल फोर्टिफिकेशन में काम आता है और ये जो कॉम्बिनेशन है वाइटानिका एसआई, इसको यूज करने में सबसे बड़ा बेनिफिट गोल्फ में मिलता है कि अपने बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। जो क्राइसिस अपना है कि ग्रीन की स्पीड नहीं है और उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता है, यदि आप वाइटानिका P3 का जो 6 से 8 स्प्रे करते हो उसमें बीच में कट करके टूर्नामेंट से 10 दिन पहले एक वाइटानिका एसआई का स्प्रे ग्रीन पे कर देंगे तो ग्रीन का स्पीड बढ़ जाता है। ये इन्होंने चार्ट भी दिया हुआ है जिससे बर्मुडा ग्रास के अंदर सिलिकॉन का इन्फ्लुएंस भी लीफ स्पॉट में देखने को मिलता है। तो वाइटानिका एसआई इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। इट कंटेन्स सिलिकेट आल्सो एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट द सेम प्रोडक्ट एक्लोनिया मैक्सिमा व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर, और ये प्लांट टॉलरेंस बचा देता है और हाई क्वालिटी की गोल्ड ग्रीन्स की पटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करता है। गोल्फ की ग्रीन की स्पीड हम लोग सब समझते हैं, मैंने एक आपको वीडियो दिखाया है, देखिए। On the mark, and then you go up and up and up very slowly, and then the ball comes out of the fixing hole. Yeah, then you stop. And now you would measure the distance between the end of the instrument to the ball. Here we are. 290. Yeah, it's not so bad. That's in the opposite direction because the turf, 3 balls, always 3 balls. ये ग्रीन की स्पीड के लिए वाइटानिका एसआई का एप्लीकेशन यदि कोई भी ग्रीन कीपर यूज करेगा ही कैन सी और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि काम्पो एक्सपर्ट के इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, इतने ग्रेड्स हैं जिसको कि गोल्फ में डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइम पे यूज किया जाता है। और ये राइट हैंड साइड पे डिफरेंट क्विक रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें से कुछ इंपोर्टेड है, कुछ हम लोग के अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से हैं और ये कुछ आइडिया देने के लिए हैं। प्रोडक्ट बहुत हैं, तो जिस वैरायटी का प्रोडक्ट अपने को चाहिए ग्रीन कीपर की जरूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट इज अवेलेबल।
न्यूट्रिशन के ऊपर मोस्टली मैंने आपको बोल दिया है, यदि कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मुझे याद दिया गया था कि वीड कंट्रोल, इट वाज बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन में। तो प्लांट प्रोटेक्शन से बेटर वीड कंट्रोल का एक बहुत बड़ा इशू है जो चैलेंज हमारे गोल्फ कोर्सेज में आता है, उस पर हम ब्रीफ पे बात कर लेते हैं। वीड्स क्या है? वीड्स है जो कि प्लांट हमें नहीं चाहिए, जिसको अनडिजायरेबल प्लांट जो होता है उसको हम वीड बोलते हैं। तो यदि पेस्पेलम भी है और वो बर्मुडा में है और बर्मुडा का ही हमारा गोल्फ कोर्स है, तो वो पेस्पेलम वहां पर अनडिजायरेबल, और पेस्पेलम का गोल्फ कोर्स है बीपीजीसी, उसमें यदि बर्मुडा है तो वहां वो अनडिजायरेबल। तो जो भी अनडिजायरेबल प्लांट है वो ही वीड बन जाता है। ये कुछ शक्लें हमें दिखाई हैं, इस टाइप के वीड होते हैं, और भी दसियों तरह के वीड होते हैं, और इनको निकालना एक चैलेंज है, क्योंकि इनको निकालने के लिए सेलेक्टिव वीडिसाइड को यूज करना होता है, और ये किसी भी टर्फ के लिए हमेशा एक टिपिकल प्रोग्राम है जो हमें साइड बाय साइड लेना पड़ता है। जितनी गोल्फ कोर्स पुरानी हो जाती है उतना डीवीडिंग मैनुअली होने से वीडिंग नहीं हो पाती और उतना इशू आ जाता है। वीड क्यों आते हैं? वीड आते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद भी, प्री ट्रीटमेंट कई बार गोल्फ ग्रीन बनाने के बाद किया जाता है, उसके बावजूद भी वीड आते हैं। वीड क्यों आते हैं? सबसे पहले तो वीड जो इनसाइड या आउटसाइड ग्राउंड में जितना भी हम रफ है हमारे यहाँ, या जो जितना भी जंगल एरिया है, जो भी है, उस वहां से वीड आता है। जितना भी प्लेयर वॉक करते हैं, विजिटर आते हैं, मशीनरी मेंटेनेंस की टीम अंदर आती है ग्राउंड के अंदर, वो भी वीड लेके आती है। और नेक्स्ट है कि ग्रास के साथ में जो वीड है, जो ग्रास ले की गई है, वो भी वीड ग्रास के साथ आपको डेवलप होता मिलता है। जब तूफान आता है, बरसात आती है, उसके साथ भी वीड बहुत आता है। मानसून के बाद हमेशा वीड आता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन कीपर को हमेशा चैलेंज रहता है। अब कैसे होगा कंट्रोल? सबसे पहला कंट्रोल तो यह है कि जितना भी आउटसाइड एरिया है उसको आप कंक्रीट कीजिए या उसको घास लगाइए, या आने जाने के स्टोर्स के आगे क्लीनलीनेस रखिए, क्लीन होना चाहिए, वहां कोई भी वीड नहीं होना चाहिए जो ट्रेवल करके अपने ग्रीन में या गोल्फ कोर्स के अंदर आएगा। जितनी भी कच्ची जमीन है उसको आप प्रॉपर हार्टिकल्चर लगाइए या उसको आप ब्यूटीफाई कर दीजिए, ताकि वहां से वीड अंदर गोल्फ कोर्स में ना आए। जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो सॉइल का ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट आते हैं, बहुत गोल्फ कोर्स कॉन्ट्रैक्टर वो वीड कीपर यूज करते हैं, उससे भी वीड खत्म हो जाता है। और ये ग्रासिंग करने से पहले पूरी ग्रीन का ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। वीड इरेडिकेशन बाद में भी करना होगा, तो वीड के लिए आपको एनुअल डीथैचिंग करनी होगी, डीप मोइंग और डीप डीथैचिंग करनी होगी। यदि हमारी जो सॉइल है यदि वो प्रॉपर एरिएटेड होगी तो वीड का डेवलपमेंट कम होगा। यदि कंपैक्शन है तो वीड हमेशा ज्यादा होगा। हमें सॉइल का कंपैक्शन खत्म करना होगा, तभी हमें वीड कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोई भी एनुअल प्रोग्राम वीड इरेडिकेशन का लेना हो तो उसका पहला स्टेप है कि आप एनुअल डीथैचिंग करें, उसके बाद डीप मोइंग करें, 3 दिन का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वीड के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड और सूटेबल सेलेक्टिव हर्बिसाइड उस पर लगेगा, और उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी ग्राउंड रेस्पॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो अपन लोग करते हैं। सबसे पहले कोई भी वीड कंट्रोल जब किया जाता है, पहले इरिगेशन करना चाहिए। इरिगेशन करने के बाद वीड कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन करने के बाद जो भी फ्रेशली ग्रोन वीड आ जाएगा उसको पकड़ लीजिए, मार्क कर दीजिए, और उसी हिसाब से आप हर्बिसाइड का स्प्रे कीजिए। हर्बिसाइड का स्प्रे या तो कट नोजल से किया जाता है, और बेस्ट है कि आप बूम से कीजिए। बूम करने से हर्बिसाइड का प्रॉपर एक एप्लीकेशन प्रॉपर आती है। गोल्फ कोर्सेज में तो एयर प्रेशर क्लीनिंग सिस्टम लगे रहते हैं सभी जगह, उसमें उसका ध्यान होना चाहिए, चलने चाहिए, और उसका ऑपरेशन में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि बिना क्लीन करे कोई भी मशीन अंदर नहीं जानी चाहिए। ये कुछ स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई हैं जिसमें कि जो पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, कुछ ब्रांड आप लोग पहचानते हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, कुछ इंडियन हैं। इसी में से ढूंढ के पेस्टिसाइड और वीडिसाइड अपने को यूज करने होते हैं। ये टॉपिक आज का जो 2 थे वो खत्म। इसके बाद मैं आपको कुछ कंपनी के प्रोडक्ट दिखा देता हूं जो हमारी कंपनी इंपोर्टेड और इंडियन देती है आपको। बावेनबर्ग एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ग्रास में एक्सपर्ट है, उसके हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में।
उनके मोटा मोटी 5 प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में रखते हैं, पैनम और मोनाको, ये 2 ग्लास की वेराइटीज है, बर्मुडा की वेराइटीज है। देन कूल सीजन वेराइटी में टफ स्टार है, बारिलाइट है, टालफेस्क्यू एंड पेरिनल वाइग्लास, देन बेंड ग्लास। ये बर्मुडा की वैरायटी है, सबसे कॉमन वैरायटी है जो कि फेयरवे में और लॉन में यूज की जाती है। ये मोनाको है जो कि ग्रीन पे या फुटबॉल ग्राउंड में यूज करने के लिए होती है, हार्डी वैरायटी है। ये सब कोट येलो जैकेट कोटेड रहती हैं। ये कूल सीजन वैरायटी है, बहुत फेमस है इंडिया में। टर्फ स्टार इज ए वेरी गुड ब्रांड और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद ये क्रीपिंग बैंड ग्लास है जो स्नोई जो एरिया है वो उसमें इस्तेमाल की जाती है। देन वी हैव टालफेस्क्यू। ये एग्रीमेंट हम लोगों ने बविनबर्ग से साइन किया है। इज द डायरेक्टर ऑफ बविनबर्ग। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्वाटॉल। ये एक वर्ल्ड लीडर है सॉइल सर्फेक्टेंट और वेटिंग एजेंट में, बहुत बड़ी रेंज है। ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं होते मोस्टली, और इनकी रेंज में बहुत पॉपुलर भी इंडिया में, और ये हम इसके इंडिया के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इसकी ये हम लोग का जो एग्रीमेंट साइन हुआ था व्हेन वी वेंट टू यूएस। ये टफ कलवेंट्स हैं। कलवेंट्स अभी भी हम लोग पिछले पैनल में डिस्कस किए थे कि ग्लास को कलर करने के लिए, उसके बाद जो सैंड कलर करने के लिए, या जो डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं और उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। तो 2 ग्रेड्स हैं और ये कंपनी एंड्योरेंट जो है हम लोग 4-5 साल से 6 साल से बेच रहे हैं इंडिया में, एंड इट्स वेरी गुड रिजल्ट एंड इकोनॉमिक ऑल्सो। ये हमने एग्रीमेंट साइन किया था। देन दे आर द ओनर्स। देन वी डील इन टफ मशीनरी। टफ मशीनरी में हमारे पास बहुत बढ़िया रेंज है, और ये जो गोल्फ कोर्सेज और स्टेडियम, अभी हम गोल्फ कोर्स की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक में काम करते हैं इंडिया में। आर्मी गोल्फ कोर्सेज हैं, 9 होल गोल्फ कोर्सेज हैं, एकेडमीज हैं, जो कि हाई एंड प्रोडक्ट मतलब हाई कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स में उनको ऑपरेशन में दिक्कत होती है, उनके ऑपरेटर भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते, मेंटेनेंस के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हैं। उनके लिए हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में पूरी रेंज बना दी है, और हम उनकी टोटल जरूरत को मशीनरी की पूरा करते हैं। वी हैव यार्ड स्टार फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टील फ्लोर फ्रॉम न्यूजीलैंड, ग्रीनमैन, लार्न स्टार फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड देन कैलिफोर्निया ट्रिमर फ्रॉम यूएसए, एंड देन ग्रीन पार्क। सो मैनी ब्रांड, एज पर स्पेशलिटी हम लोग ब्रांड देते हैं। इसमें हम पे गोल्फ कार्ट भी है, ग्रीन मूवर भी है, और फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। और कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे हैं, मशीन्स ऐसी हैं जो इंडिया में बाकी कंपनी पे है ही नहीं, तो आप लोग डिस्कस करके ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये ग्रीन मूवर है जो कि न्यूजीलैंड से, लार्न स्टार जो ये ब्रांड है स्टील फोर्ड, ये न्यूजीलैंड का ब्रांड है, और ये ग्रीन कट करने के लिए इसकी जो कटिंग हाइट है वो 2 mm to 30 mm है। स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है, सारे फीचर्स हैं। कॉम्प्लिकेशन मशीन नहीं है, बहुत सिंपल मशीन है और इकोनॉमी प्राइस है। ये 0 टर्न मूवर हैं। इनका बेनिफिट है कि ये दोनों ऑपरेशन करते हैं कि जितने ट्रीज के अराउंड जितना भी एरिया है काटना होता है, बड़े लैंडस्केप काटने होते हैं तो राइड ऑन होते हैं, राइड ऑन में कट करना बहुत आसान है। रग्ड है, स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। इसमें 3 मॉडल आते हैं, 42 इंची, 48 इंची, 52 इंची, तीनों में ग्लास कलेक्टर आता है। तो गोल्फ कोर्सेज में जो लीफ कलेक्टर का काम भी आप 0 टर्न मूवर से कर सकते हो, मल्टीपर्पज मशीन बन जाती है।
और इसमें कई और वेरिएशंस हैं, हाई मल्च किट भी आती हैं, हाई ब्लेड्स भी आते हैं, और ये बहुत परफॉर्मेंस है और बहुत स्टडी है, और ये टोटल अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे बने हुए गोल्फ ये मशीन्स हैं, और सारे कंपोनेंट इसमें अमेरिकन है। ये 52 इंच की मशीन है ये वाली, और इसमें ये ग्लास कलेक्टर है। ये सारे वीडियो मैंने आपको होवर का डेमो आप देख रहे हैं, किस तरीके से होवर मोवर का डेमो, और ये ढलान पे किस तरीके से घास काट रही है, आप देखिए। बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छा इसका एफिशिएंसी है। आमतौर पे हम ब्रश कटर का इस्तेमाल करते हैं, पर उससे वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। ये होवर मोवर जो है एक तरह की मशीन है जिससे अच्छी खासी एफिशिएंसी आती है, लगभग ब्रश कटर के मुकाबले लगभग 3 गुना व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ जाती है मशीन के साथ काम करने की। और देखिए किस तरह से ढलान पे ये घास को काट रहे हैं। ये एक तरह का डेमो दिया जा रहा है यहाँ पे पीसी के अंदर स्लोप पे घास काटते हुए की। आप देखिए किस तरीके से ये क्रॉस कटिंग हो रही है यहाँ पे स्लोप की घास। और ये मशीन जो है लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक की मशीन है। इसकी कीमत इंपोर्ट की जाती है, परंतु इसमें इंजन जो 4 स्ट्रोक होंडा का इंजन है, सारी बॉडी फाइबर की है और सारे पार्ट्स अवेलेबल है। ये जो ब्रश कट, ये जो हवा मूवर है, ये हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। इंडिया में केवल 2 ही लोग हैं जो हवा मूवर देते हैं, और हमारा ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 6 से 7 हाई एंड गोल्फ कोर्सेज में रेगुलर यूज होता है। इसमें इंजन जो होता है वो एक स्पेशल इंजन है GCV 160, जो कि इंडिया में होंडा नहीं बनाती है। ये टोटल इंजन भी इंपोर्ट होता है, और इस इंजन में खूबी होती है कि नीचे जो इसका संप होता है वो टेढ़ा होता है, तो स्लोप के ऊपर काम करने में कभी भी इंजन बंद नहीं होता। और हवा मूवर के ऊपर वर्ल्ड में कोई दूसरा इंजन कामयाब ही नहीं हुआ आज तक। तो हम लोग हवा मूवर में इंजन भी देते हैं, और होंडा का ओरिजिनल इंजन इंपोर्ट करके हम वो भी रिप्लेस करते हैं, और हवा मूवर भी अवेलेबल है। मैंने आपको जितने वीडियो दिखाए हैं ये वाले सब इंडियन वीडियोस हैं जो कि एक्चुअल साइट के हैं। मैंने कोई इंपोर्टेड या एनिमेटेड वीडियो नहीं दिखाया है, और ये सब के सब वो मशीन्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी सेल की हुई है। ये इलेक्ट्रिक लॉन मूवर्स हैं जो कि लोग इकोनॉमी लेवल पे यदि कोई गोल्फ कोर्स काम करता है तो उसके बाकी करने के लिए, एप्पन कट करने के लिए, बाकी के लिए वो लोग कई बार इलेक्ट्रिक भी यूज करते हैं, या लॉन में यूज करते हैं, कोठी में यूज करते हैं। ये लॉन एविएटर है और ये लॉन डीथैचर है। डीथैचिंग की बात हमने की, एविएटर की बात हम लोग सब समझते हैं, टाइम्स होती हैं। ये दोनों मशीन्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिकली प्राइस्ड हैं, और ये स्टडी मशीन्स हैं। ये सब की सब डिजाइंड हैं, इनके फ्लो चार्ट हैं, इनके स्पेयर पार्ट नंबर्स हैं, और जैसा भी हम किसी भी बड़ी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से इनके भी सारी बैकअप अवेलेबल है।
ये स्कैबिफायर है, व्हील स्कैबिफायर। ये एक्चुअल साइड का आपको वीडियो है। ये शॉर्ट कटर है। ये बहुत सुंदर मशीन है, ग्रीन रोलर है, हाई टेक्नोलॉजी पे है, इसके पूरे फीचर्स दिए हुए हैं। और ये ये अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये बूम स्प्रेयर है, इसमें बूम रहता है, एल्युमिनियम का है। और ये छोटी ग्रीन्स के लिए 40 लीटर की इसकी कैपेसिटी रहती है, 38 लीटर की 10 गैलन की रहती है। और ग्रीन के ऊपर स्प्रे करने के लिए ये आइडियल है। सॉल्यूशन बनाइए ग्रीन पे, वीड कंट्रोल के लिए, या फंजीसाइड स्प्रे करना है, वेटिगेटेंट करना है, फर्टिलाइजर करना है, उसके लिए बहुत आइडियल मशीन है। ऑलरेडी इंडिया में कई जगह लोकेशन पे मशीन हमारी चल रही है। और ये बैटरी ऑपरेटेड है। बैटरी ऑपरेट होने से ये एनवायरमेंटली के लिए साउंडलेस है और सेफ है। कोई इंजन नहीं, कोई मोटर नहीं। ये गोल्फ कार्ट है, हम लोग गोल्फ कार्ट इंपोर्ट करते हैं। नोएडा गोल्फ कोर्स में ऑलरेडी 2 गोल्फ कार्ट हमारी चल रही हैं। ये गोल्फ कार्ट वही हैं जो गोल्फ कार्ट आप इंटरनेशनली जिनको गोल्फ कार्ट कहा जाता है। बाकी सब तो हिंदुस्तान में जो बिक रहा है सब बैटरी रिक्शा बिक रही है। और बैटरी रिक्शा को गोल्फ कार्ट समझ के लोग, इसको क्वालिटी समझ में नहीं आती लोगों को। इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, इसमें कर्टिस का कंट्रोलर होता है, इसमें केडीएस की मोटर होती है, और इसमें जो है मैकफर्सन का सस्पेंशन होता है, ट्रोजन की बैटरी होती है। और वो सारे फीचर्स होते हैं जो किसी भी गोल्फ कार्ट में होने चाहिए। और बिल्कुल बैकअप पूरी है। और ये रियल गोल्फ कार्ट्स। बाकी मशीन्स, हॉर्टिकल्चर की मशीन्स भी हमें चाहिए होती हैं गोल्फ कोर्स में। कई बार ट्रैक्टर माउंट स्प्रे भी चाहिए होते हैं, तो हम लोग 4-5 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के, होंडा के, एसपी, स्टील और फाल्कन के, तो हम लोग वो प्रोडक्ट भी इंडिया के दे देते हैं। ये हमारी टीम, आपने इस टीम को पहले देखा होगा, गोल्फ शो का हमारा फोटो है स्टॉल का। मोस्टली मेरे जितने भी वो कस्टमर है सब मिले हैं वहां पे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और इतनी देर तक मेरे साथ बैठे आप। Thank you, Goel साहब. Fantastic presentation as usual, Goel साहब. Very well और डिटेल में आपने सब कुछ बढ़िया समझाया. So thank you very much to all of you for staying with us for so long. And we'll see you tomorrow at 5 p.m. again. कल का schedule has been posted on our WhatsApp group and on our website also. Looking forward to having you tomorrow. Thank you. Bye-bye. बाय बाय, बाय बाय।